Now, welcome back, students. Yesterday, in the previous class, we have discussed about the Cohort's law. So, in Cohort's law, what we have discussed that Cohort's law is helpful in determining the molar conductivity at infinite dilution. दूसरा क्या है वो अल्फा बताता है आपको, और तीसरा क्या है वो के ए की वैल्यू बताता है. क्या बताता है? के डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द वीक एसिड. तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना हो, किसी का भी इलेक्ट्रोलाइट का आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना हो, या मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनिट डिल्यूशन किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए निकालना हो, इन ऑल द केसेस यू विल अप्लाई कोहर्ट्स लॉ. ओके, एंड नॉट द लीस्ट, इट इज आल्सो हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग द solubility of strongly soluble salt. So all these values, they are what? They can be determined by using Cohort's law. So now we will do some numerical on that. Now in the next question we will discuss that at infinite dilution the molar ionic lambda is called molar ionic conductivity at infinite dilution. It is called molar ionic conductivity. These values are experimental values. You have to understand that. Okay. Now, when you have to calculate the substance like that, what will happen now in this case? You will write that molar conductivity at infinite dilution will be equal to 2 times lambda of potassium plus 1 times lambda of sulfate ion. That's how you will calculate. So 2 into lambda of potassium, what is that value? 73.5 plus sulfate, that is 160. So after that what will you do? You will find out by summation. The answer comes out to be 307 Simon centimeter square mole inverse. Are you okay? So you can determine the, if molar ionic conductivity of any ion is given, you can determine the molar conductivity of the substance that can be obtained from the combination of all those ions. Now in the next question, what has been given to you, you are provided with the information that molar conductivity of NaCl at infinite dilution is what? Molar conductivity at infinite dilution is equal to 126.4, while molar conductivity of HCl is 425.9 Simon centimeter square mole inverse, while molar conductivity of sodium acetate is 91 Simon centimeter square mole inverse. By using that, you have to determine what? You have determined the molar conductivity of acetic acid. That you have to find out. Okay. Now, since we know that already, that molar conductivity of any substance is determined by adding up the molar ionic conductivity of individual ions. Okay, we already know that word. How will you determine the value of NaCl? You will say, sir, lambda of sodium plus lambda of chloride ion. How will you determine the molar conductivity of HCl? You will say lambda of H plus lambda of chloride ion. So it means at infinite dilution, every ion is behaving independently. Its value does not depend upon with which other ion it has been attached to. तो जब उसकी वैल्यू डिपेंड ही नहीं कर रही वो किससे अटैच है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि आप कंपाउंड की वैल्यूज को इंडिविजुअल वैल्यू में लिख सकते हैं. तो अगर हम इसको बोल दें कि ये देखिए ये नंबर 1 वैल्यू है, ये नंबर 2 वैल्यू है, ये नंबर 3 वैल्यूज है, अब हम इन वैल्यूज का यूज करके आपको क्या करेंगे? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड निकाल के दिखाएंगे. ये जो AC नेगेटिव है दैट स्टैंड फॉर एसीटेट आयन, क्वेश्चन में दे रखा है आपको. आर यू श्योर अबाउट दैट? AC स्टैंड फॉर एसीटेट आयन. आर यू श्योर? सो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ acetic acid will be equal to what? That value is equal to molar conductivity of sodium acetate
प्लस मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू ऑफ HCl माइनस मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू ऑफ NaCl. Are you sure? That's how you will get that answer. That from the molar conductivity value of sodium acetate and HCl you will add up and then you subtract the value of NaCl. Are you sure about that? Now you can determine the individual values. Now how will you write? Answer, it is lambda of Na plus lambda of acetate ion plus lambda of H plus lambda of chloride ion minus lambda of Na plus minus lambda of Cl negative. You can see that from there you are getting that. Okay, so what will happen now? You will say that Na plus will cancel out Na because it is in negative term, it is in positive term. Similarly, this HCl will nullify that HCl. So what is left over? Acetate ion or NH ion. So what is the answer we will get? You will get a molar conductivity of acetic acid. Clear? Sure. So similarly, so you will do like that. You will first do what? You will add up first. Molar conductivity of sodium acetate. What is that value? That value is 91. Then you will add molar conductivity of HCl. What has been given to you? 425.9. Check the question once more. And then you subtract what? Then after that you will subtract the value of what? You will subtract the value of NaCl, that is 126.4. Okay, then if you determine the whole answer after that, the answer you will get 390.5 Simon centimeter square mole inverse. So what you will do, so whenever the question of that type will occur to you, you will make sure that कि आप हर एक आयन को इंडिविजुअल लिखें और चेक करें कि कौन से आयंस को ऐड करने पर आपके पास क्या मिल रहा है, आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ रहा है. तो उसका मीनिंग क्या होगा? आपको अपना दिमाग यूज करना है यहाँ पे और यूज करके चेक कर रहे हैं क्या क्या करना है, ये चेक करना है कि वैल्यूज कहाँ तक आएंगी. आर यू श्योर? तो थोड़ा सा इसमें आपको चेक करना पड़ेगा कौन सी वैल्यू को हम प्लस करें, कौन सी वैल्यूज को हम नेगेटिव करें. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको क्या क्या गिवन है. आपको क्वेश्चन में गिवन है कि सिल्वर नाइट्रेट की वैल्यू है 13.34 साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. सेकेंड आपको क्या गिवन है? आपको गिवन है यहाँ पे KCl की वैल्यू 14.99 और लास्ट में क्या है? पोटाशियम नाइट्रेट की वैल्यू गिवन है आपको 14.49 मीटर स्क्वायर, तो साइमन मीटर स्क्वायर सॉरी. तो हम चेक करें दोबारा से क्या है यहाँ पे कि आपके पास पोटाशियम नाइट्रेट KCl और पोटाशियम नाइट्रेट की वैल्यू गिवन है. सारी की सारी वैल्यू चेक कीजिए. ऑल द वैल्यूज गिवन है किसमें? साइमन मीटर स्क्वायर में. क्लियर? तो पहले आपको निकालना है, आपको निकालना है AgCl. दैट हाउ विल यू फाइंड आउट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AgCl. तो क्या करेंगे आप? अगर 1 और 2 को प्लस करके सब्ट्रैक्ट कर दें 3, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, 1 और 2 को प्लस करके सब्ट्रैक्ट कर दें 3, तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा. तो अब चेक करते हैं कैसे होगा ये आंसर. तो देखिए पहले करेंगे 1 क्या है? सिल्वर नाइट्रेट. तो इसके इंडिविजुअल आयन लिख दीजिए Ag प्लस और नाइट्रेट. क्या लिखेंगे आप? नाइट्रेट. फिर आप KCl के इंडिविजुअल लिखिए K प्लस लैम्डा Cl नेगेटिव. फिर आप माइनस करेंगे लैम्डा ऑफ K प्लस और माइनस करेंगे लैम्डा ऑफ नाइट्रेट.
तो आप चेक कीजिए, ये प्लस की वैल्यू और ये नेगेटिव की वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएगी, और ये पोटाशियम की वैल्यू और ये पोटाशियम वैल्यू क्योंकि ये पॉजिटिव में ये नेगेटिव में कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास है दो वैल्यूज बचेंगी। वो कौन कौन सी दो वैल्यूज हैं? एक है Ag प्लस और दूसरी है Cl नेगेटिव। आर यू श्योर अबाउट दैट? क्लियरली अंडरस्टूड नाउ? सो दैट्स हाउ यू विल डू नेक्स्ट पॉइंट। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? हमारे पास आंसर को हम चेक करने वाले हैं। तो आप चेक करेंगे तो वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे? वैल्यू आप चेक कीजिए दोबारा से कि ये वैल्यू यहाँ से आई है, देखिए पहले से। तो इसका मतलब क्या हुआ? पोटाशियम नाइट्रेट, KCl और पोटाशियम नाइट्रेट। तो तीनों वैल्यू को पहले दो को प्लस कीजिए, तीसरी को नेगेटिव कीजिए। तो सिल्वर नाइट्रेट की वैल्यू क्या आ रही है? 13.34। उसमें आप KCl की वैल्यू प्लस कीजिए, वो है 14.99, और माइनस कीजिए पोटाशियम नाइट्रेट की 14.49। तो जब हम सॉल्व करेंगे इसको, तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? चेक कीजिए, 14.99 से हमने क्या किया? 14.99 से ये माइनस किया, तो ये 14.99, ये 14.49। नेगेटिव करने पर आंसर क्या आ गया? प्लस का 0.5। जस्ट ऐड दीज टू नंबर, यू आर एबल टू गेट द फाइनल आंसर। अब आप चाहें तो इसको पुरानी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे पास यूनिट जो हमने पढ़ी हुई है वो ज़्यादातर मीटर स्क्वायर में पढ़ी हुई है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो आप चाहें तो इस क्वेश्चन को आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं इन सेंटीमीटर स्क्वायर आल्सो। आर यू श्योर अबाउट दैट? तो आप जैसा क्वेश्चन को चाहें वैसा रिपोर्ट कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन में से एक है। वो कह रहा है बेरियम हाइड्रोक्साइड की जो वैल्यू है वो है x साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अमोनियम क्लोराइड की जो कनेक्टेड वैल्यू है वो है y साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और बेरियम क्लोराइड की जो वैल्यू है वो है z साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो बताइए मोल्डर कनेक्टिविटी अमोनियम हाइड्रोक्साइड की क्या होगी? आर यू श्योर विद द क्वेश्चन? तो यहाँ पर अगर हम चेक करेंगे तो हमें क्या आंसर आएगा कि अगर हम यहाँ पर 2 क्या करें, हम अगर हम 2 प्लस हाफ ऑफ 1 कर दें और उसमें से माइनस कर दें हाफ ऑफ 3, तो वी आर एबल टू गेट द डिजायर्ड आंसर ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? क्योंकि हर एक आयन इनफिनिट डिल्यूशन पे क्या होता है? हर एक आयन एट इनफिनिट डिल्यूशन एक इंडिविजुअल आयन की तरह काम करता है। तो हमने क्या किया? मोल्डर कनेक्टिविटी ऑफ 2 क्या है? मोल्डर कनेक्टिविटी ऑफ अमोनियम क्लोराइड, प्लस हाफ क्या है? मोल्डर कनेक्टिविटी ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, और माइनस हाफ क्या है? मोल्डर कनेक्टिविटी ऑफ बेरियम क्लोराइड। श्योर अबाउट दैट? इसको हम आगे करेंगे तो क्या आंसर आएगा चेक करते हैं हम। देखिए अब आपने करना क्या है, जस्ट वैल्यूज़ को पुट कर देना यहाँ पे। तो अमोनियम क्लोराइड, ये देखिए चेक कीजिए दोबारा से, अमोनियम क्लोराइड इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? इसकी वैल्यू आ जाएगी अमोनिया प्लस क्लोराइड, अमोनिया प्लस क्लोराइड। उसके बाद देखिए ये है हाफ ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो करेंगे हाफ ऑफ बेरियम
और ये 2 टाइम्स हाइड्रोक्साइड है इंटू 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये कैंसिल आउट हो सकता है। क्लियर नहीं, क्लियर आपको, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या होगा, माइनस हाफ लैम्डा बेरियम प्लस 2। क्लियर। तो यहाँ पे अब क्या होगा, जो बेरियम हाफ से ये बेरियम का हाफ है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में है। और उसी तरह से यहाँ पर क्या, क्लोराइड आयन से यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्लोराइड से क्लोराइड आयन यहाँ कट गया। तो बचा क्या हमारे पास, लैम्डा ऑफ अमोनिया, अमोनियम आयन प्लस ये 2 से 2 कट गया, कितना आ गया, लैम्डा ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आया कि नहीं आया, तो आंसर आया। कहाँ से आया, आंसर आया आपका इस इक्वेशन से, 2 प्लस हाफ ऑफ 1, 2 प्लस हाफ ऑफ 1 माइनस हाफ ऑफ 3, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो दोबारा रिपीट करता हूँ, 2 ये वैल्यू 2 लेनी है पहले अमोनियम क्लोराइड की, प्लस हाफ ऑफ 1 बेरियम हाइड्रोक्साइड लेंगे आप, माइनस हाफ ऑफ 3 दैट इज बेरियम क्लोराइड। आर यू ओके विद द सिचुएशन नाउ, ओके। तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज 2 टाइम्स y प्लस x/2 माइनस z/2। आर यू श्योर अबाउट दैट, मैं दोबारा लिख रहा हूँ, यह है 2 प्लस हाफ ऑफ 1 माइनस हाफ ऑफ 3। आर यू श्योर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको एज ए स्टूडेंट मालूम होना चाहिए। नाउ वी विल सी फर्दर दैट what is given to you. The question given to you is that lambda of H plus ion at infinite dilution is 349.6 and lambda of acetate ion is 40.9. Now if you are given a solution of 0.00241 molar acetic acid, then the value of K is this, K stand for what, kappa. Then what is the value of what? That is, what is the value of Ka? Everyone knows that the value of K is what? The value of K is equal to C alpha square 1 minus alpha. And in order to get the value of alpha, you should know the molarity of the molar conductivity of the solution at a given concentration. In this case, that is 0.0024. And molar conductivity at infinite dilution. तो आपको क्या करना है, मोलर कनेक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय मोलर कनेक्टिविटी एट इन्फिनिट डिवीजन का जो रेशियो है वो अल्फा है और इसको यहाँ पुट करना है। तो ये 2 स्टेप में क्वेश्चन होगा, क्लियर। तो अब हम वो 2 स्टेप को पूरा करते हैं। आर यू श्योर। तो पहले क्या आएगा, पहले आएगा मोलर कनेक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन, तो ये होता है कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलरिटी। तो इस केस में वैल्यू क्या आ रही है, इस केस में वैल्यू आ रही है 7.896 इंटू 10 पावर -5 इंटू 10 पावर 3, ये पावर 3 हो जाएगा, डिवाइड बाय मोलरिटी दैट इज 0.00241। इसको सॉल्व करते हुए हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 32.76 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है मोलर कनेक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन। अब हमने निकालना है मोलर कनेक्टिविटी एट इन्फिनिट डिल्यूशन। तो क्या होगा, 1 इंटू लैम्डा ऑफ H प्लस 1 इंटू लैम्डा ऑफ एसीटेट। These two values we have to determine now. Okay, so what is lambda H plus equal to? So already known to you, this is value of lambda H plus, this is value of lambda acetate ion. So only one it is applicability. So answer will be what? Answer will be molar connectivity at infinite dilution is equal to 1 into 349.6 plus 1 into lambda 40.9. The overall answer comes out to be 390.5.
Simon centimeter square mole inverse. Now what is the value of alpha? The value is that molar conductivity at given concentration by molar conductivity at infinite dilution. So what is the previous answer? 32.76. 32.76 divided by 390.5. So the answer comes out to be 0.084. Since alpha value is what? Since alpha value comes out to be 0.084, the value is what? The value is more than 5%. So we have to take into consideration what? That Ka value is equal to C alpha square by 1 minus alpha, where T stand for molarity of the solution. What is the molarity? 0.00241 into what is the value of alpha? 0.084 whole square divided by 1 minus 0.084. So the value of K comes out to be how much? It comes out to be 0.000040, that is 185. So it is 1.85 into 10 power minus 5. This is the value of dissociation constant. What is that value? Dissociation constant value. Are you okay with that? Very, very important question that is. These questions are very, very popular both in board exam as well as in IIT exam. Okay, please look at that scenario once more. Okay, look at the scenario once more. That you are given what? You are given the value of lambda of H plus and lambda of H delta n. So these two steps are helpful in determining the value of infinite dilution. The other part will helpful in determining the value at given concentration. You just put that value and determine the molar conductivity at given concentration, that is 32.76. After that, you determine the value at infinite dilution, that is 390.5, and you just take the value of alpha. Once you get the value of alpha, just put in the given situation, you are able to get the answer. Very, very important question. देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको? क्वेश्चन में आपको गिवन है कि एक एसिड है HA एट 18 डिग्री सेल्सियस, जो लैम्डा ऑफ H प्लस है वो 315 साइमन मोल इनवर्स है. अभी देखिए पिछले क्वेश्चन में आपने पढ़ा है वो पढ़ा था 349.6 H प्लस की वैल्यू, लेकिन वो वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस पे थी. इसका मतलब क्या हो गया? मोलर आयनिक कंडक्टिविटी वैल्यू है, इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर. क्या बेटे? इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर. वैसे मैं हमारे कोर्स में तो घर नहीं है, लेकिन आपको एक इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ. विद एवरी 1 degree rise in temperature, the value increases by nearly 0.2%. तो ये एक जनरलाइजेशन है जो हमें मालूम होनी चाहिए. जो लैम्डा ऑफ ए नेगेटिव है वो दे रखी है 35, और कह रहा है कप्पा की वैल्यू है दिस और मोलैरिटी है ये. तो बताइए अल्फा की वैल्यू क्या है? तो सबको मालूम है अल्फा की वैल्यू होती है मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनिट डिल्यूशन. ठीक है जी, श्योर. तो पहले आप क्या निकालिए? पहले आप मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनिट डिल्यूशन निकाल लीजिए. क्या आएगा वो? लैम्डा ऑफ H प्लस एट इन्फिनाइट प्लस लैम्डा ऑफ ए नेगेटिव. तो आंसर कितना आ रहा है? 315 प्लस 35. आंसर आ गया आपके पास 350 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. आर यू श्योर अबाउट दैट? अब आपके सामने क्या है? मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन. तो किसके इक्वल है? कप्पा इंटू 1000 बाय मोलरिटी. तो वैल्यू क्या आएगी? वैल्यू आएगी 4.0 इंटू 10 पावर माइनस 5 इंटू 1000 डिवाइड बाय व्हाट इज मोलरिटी? मोलरिटी इज 0.001. So molar conductivity at given concentration is found to be what? It found to be 40. So the next example will be
it is molar conductivity at infinite dilution by molar conductivity at given concentration. 40 by how much? 40 by 350. So that's how you will determine the value. So answer is 0.117. Are you sure? Easy question. That is too easy. Next question is very, very interesting. The question is what? The question is like that. You have lambda of Ag plus given to you and lambda of Cl negative also given to you. You have to find out what? You have to find out the Ksp of AgCl. Are you okay? So how would you find out? Answer is, if you find molar conductivity at infinite dilution, kappa into 1000 divided by molarity, that molarity is solubility. That molarity is what? Solubility. And if you find that molarity square will be equal to Ksp value. How is that? चेक करते हैं हम वैल्यू को, देखिए कैसे. Now first what you will do? First you will find out the molar conductivity of AgCl at infinite dilution. So you will take out what? Individual molar ionic conductivity of both the ions. After that, जो जनरल इक्वेशन है आपकी मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनिट डिल्यूशन इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बाय मोलैरिटी, उसमें आप पुट कर दीजिए. ओके, यहाँ मैं दोबारा बता दूँ आपको, जो वैल्यू है एक्चुअल में होती है मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन, लेकिन AgCl है वो ऑलरेडी स्प्रैंगली सॉल्युबल सब्सटेंस होता है, तो उसकी जो मोलैरिटी होती है वो ऑलरेडी इन्फिनिट डिल्यूटेड होती है, मतलब बहुत कम अमाउंट होता है सोल्यूट का. इसलिए उस केस में आप मोलर कंडक्टिविटी को मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनिट डिल्यूशन ही लिखते हैं. वाई? बिकॉज सॉल्ट इज ऑलरेडी इन्फिनिट डिल्यूटेड. आर यू श्योर अबाउट दैट? तो उसके बाद कैलकुलेट कर लिया, तो जब हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे मोलैरिटी इज इक्वल टू 1.12 इंटू 10 पावर -3 डिवाइडेड बाय दैट इज 119.8. क्या किया गया? देखिए मोलैरिटी इधर आ गई और ये इधर आ गया. ठीक है, श्योर अबाउट दैट? क्लियर बेटे? तो अब इसको जो सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ रहा है 9.34 इंटू 10 पावर -6 मोल पर लीटर. तो ये क्या है? ये है मोलैरिटी ऑफ AgCl, मतलब ये सॉल्युबिलिटी है. तो अगर आपको पूछेगा इसकी Ksp वैल्यू क्या है, तो आप बोलेंगे Ag प्लस इंटू Cl नेगेटिव की मोलैरिटी. तो ये क्या हो जाएगा? m इंटू एम, दैट इज m का स्क्वायर. तो वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 9.34 इंटू 10 पावर -6 का होल स्क्वायर. ठीक है जी. तो Ksp वैल्यू क्या आ गई? 87.24 इंटू 10 पावर -12. तो इसको आप कर लेंगे 8.724 इंटू 10 पावर -11. क्या है ये? Ksp ऑफ AgCl अंडर गिवन सेट ऑफ कंडीशन. गिवन सेट ऑफ कंडीशन में कितनी वैल्यू है इसकी? आर यू श्योर अबाउट दैट? तो आप कोहर्स लॉ से मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनिट डिल्यूशन भी निकाल सकते हैं. आर यू श्योर अबाउट दैट? वेरी गुड. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. कह रहा है एट इन्फिनिट डिल्यूशन हमारे पास क्या है? कह रहा है मोलर आयनिक कनेक्टिविटी ऑफ KCl इज 130. कह रहा है अगर ट्रांसपोर्ट नंबर है उसका 0.505, तो बताइए आयनिक मोबिलिटी और मोलर आयनिक कनेक्टिविटी ऑफ K प्लस आयन क्या होगी सोल्यूशन में. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. ठीक है, तो अब हम इसको चेक करते हैं हाउ द वैल्यूज गोज नाउ. तो सबको मालूम है ये बात. ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है? ट्रांसपोर्ट नंबर होता है, ट्रांसपोर्ट नंबर का मतलब होता है करंट कैरिंग एबिलिटी ऑफ दी क्या? आयन. करंट कैरिंग एबिलिटी ऑफ आयन. आयन की करंट कैरिंग एबिलिटी क्या है? आयरन की करंट कैरिंग एबिलिटी क्या है? इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है हमारे पास ट्रांसपोर्ट नंबर. द करंट कैरिंग एबिलिटी ऑफ आयन इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट नंबर.
और जो टोटल ट्रांसपोर्ट नंबर है वो क्या होता है, टोटल ट्रांसपोर्ट नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ के प्लस कितना आ जाएगा, क्लोराइड रखा है 0.505, तो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन विल बी 0.495। ओके, now lambda of an ion will be equal to what, transport number of the ion into total molar conductivity of the substance. Okay, so in this case what will happen, lambda of K plus will be equal to what, transport number of the K plus into total molar conductivity of the substance. So answer comes out to be how much, the answer comes out to be 64.35 Simon centimeters mole inverse. That is the lambda of K plus. So what is lambda of K plus now equal to, that is also equal to, this is called as ionizability of the cation into 1 Faraday of charge. So what is ionizability of potassium, everyone knows that, what is 1 Faraday, 96,500. Lambda is 64.35 divided by 1 Faraday, it is 96,500. So what is molar ionic conductivity of K plus ion, that is equal to 6.67 into 10 power minus 4 centimeter square second inverse volt inverse. So that should be the answer. Okay, this is the ionic mobility of the cation. Ionic mobility of the cation, two formulas you have to understand. One is lambda of the cation is equal to mobility of the ion into 1 Faraday. If in place of potassium it is chloride ion, I will write Cl, lambda of Cl negative is equal to mu of Cl negative into 1 Faraday. मान लीजिए लैम्बडा ऑफ H प्लस क्या होगा, लैम्बडा ऑफ H प्लस इक्वल टू म्यू ऑफ H प्लस इंटू 1 Faraday. So this is general formula for all the ions. Are you sure? Very good. Next question is very interesting question. So similarly the molar ionic conductivity can also be used to determine the ionic product of the water. Okay, now from the previous 11th class study you already know that Kw of water is 10 power minus 14 at 298 Kelvin. So what is observed that at 298 Kelvin these are the observation. What are the observation? That lambda of H plus is 349.6 and OH is 198.5 Simon centimeter square mole inverse. If the conductivity of water is 5.51 10 power minus 8, then determine the ionic product of the water. So how would you calculate? First determine the molar conductivity at infinite addition for water, that is lambda of H plus and lambda of what, OH negative. So what is the answer here? The answer here found to be 198.5 for hydroxy ion and 349.6 for, so answer comes out to be how much? Answer comes out to 548.1 Simon centimeter square mole inverse. Now in this case what will happen now? Everyone knows that at infinite dilution this is the value. So answer is kappa into 1000 by molarity. So what is the molarity now in this case? Molarity should be equal to kappa into 1000
divided by molar conductivity at infinite dilution. So if you put down all those value here, what is the answer now? Answer will be, so this is molarity the water comes out to be. How much it comes out to be? It comes out to be 1.005 into 10 power minus 7. How it is that? You divide 5.51 by this value, minus 8 plus 3 becomes minus 5, and from below it will come like that. So 551 into 10 power minus what is that answer will be? 7. Okay. So what is M? That is concentration of H plus ion and concentration of OH negative ion. Why? Because you have taken electrolyte like H2O, and H plus and OH negative is its two cationic and anionic part. So what is Kw equal to? That is equal to H plus into OH negative. What is that now? 1.005 into 10 power minus 7 into 1.005 into 10 power minus 7. So taking both as very near to 1, so answer is 1.01 into 10 power minus 14. Very interesting part. Okay, sure about that? Very good.